Now another example of living organism is consciousness. Another feature, consciousness and cellular level of organization. What is consciousness? Consciousness is a feature due to which an organism responds to the external stimuli present in the surroundings. हमारे सराउंडिंग में कई सारे ऐसे स्टिमुलस हैं जिसके प्रति हम रिस्पॉन्ड करते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल किसी तरह से अगर हमारे हाथों में निडल पियर्स हो जाए तो वी फोल्ड आवर हैंड्स. लेग में कुछ पियर्स शार्प ऑब्जेक्ट अगर पियर्स कर जाए तो वी फोल्ड आवर लेग्स. तो ऐसे जो हमारा रिस्पॉन्स होता है, दिस रिस्पॉन्स इज ड्यू टू स्टिमुलस प्रेजेंट इन आवर सराउंडिंग्स. दिस इज कॉल्ड consciousness. Consciousness is the defining feature of living organism because consciousness is not observed in any non-living system. Consciousness is always observed in living system, and all organisms from prokaryote to eukaryote shows consciousness. All organisms from prokaryotes to यूकैरियोट्स, सारे हमारे ऑर्गेनिज्म क्या शो करते हैं? कॉन्शियसनेस को शो करते हैं. सो कॉन्शियसनेस. ड्यूरिंग कॉन्शियसनेस organism responds to the external stimulus present in our surroundings. हमारे सराउंडिंग में जो भी स्टिमुलस प्रेजेंट है उसके प्रति हमारा रिस्पॉन्स क्या होता है? वो कंसियसनेस होता है. कंसियसनेस इज डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बिकॉज इट इज प्रेजेंट इन ऑल ऑर्गेनिज्म विदाउट एनी एक्सेप्शन. किसी भी एक्सेप्शन के बिना ये सारे ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होता है कंसियसनेस. इसलिए कंसियसनेस हमारे पास क्या होता है? ये हमारा डिफाइनिंग फीचर होता है. इट इज डिफाइनिंग फीचर. इट इज डिफाइनिंग फीचर. अगर ह्यूमन बीइंग की बात करें तो ह्यूमन बीइंग में कंसियसनेस सबसे एडवांस लेवल का ऑब्जर्व किया जाता है. द consciousness which is observed in human being is self consciousness. This feature is not present. Self consciousness is not present in any other organism except the human being. It is present only in human being, due to which human beings are most advanced. Self consciousness means अवेयर टू इट सेल्फ. हम अपने लिए अवेयर होते हैं, हम अपने लिए सोचते हैं. सेल्फ कंसियसनेस है कि किसी भी एनिमल को आपने नहीं देखा होगा कि खुद को वो मिरर में प्रिपेयर करता है कहीं जाने से पहले, कुछ बोलने से पहले खुद को प्रिपेयर करते हैं, एग्जामिनेशन लिखते हैं, प्रिपेयर करते हैं उसके लिए. इस तरह की एक्टिविटी किसी भी एनिमल में ऑब्जर्व नहीं होती, सिर्फ एनिमल में. ह्यूमन बीइंग के अंदर ये ऑब्जर्व होता है सेल्फ कॉन्शियसनेस. सो ह्यूमन बीइंग आर मोस्ट एडवांस्ड. अगर हम कंसियसनेस की बात करें तो ह्यूमन बीइंग्स आर मोस्ट एडवांस्ड एनिमल्स. इट इज डिफाइनिंग फीचर ऑल्सो. द लास्ट प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग बीइंग इज सेल्युलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. सेल्युलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. सेल्युलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. What is cellular level of organization? We know very well that all living beings are made up of cells. Cell is the structural and functional unit of life or living being. There are no living system where cells are not present. So without exception, cellular level of organization is present in all living beings. So cellular level is also defining feature of organism. What is cellular level? Means
Level of organization starts from cell in living system. From cells, tissues, organ system, individual organisms are formed. It is the smallest level of living organism. तो एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म में सबसे छोटा यूनिट क्या है? सेल है. अगर कोई लिविंग है तो उसके पास सेल जरूर है. बिना सेल के हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को लिविंग नहीं कह सकते. सो सेल इज द स्ट्रक्चरल and functional unit. Cell is the structural and functional unit of living being. It is present in all the living organism, whether it is unicellular or multicellular. At least the organism contains a cell. Viruses, as you know well, viruses are non-living outside our living system because viruses lacks cell. Viruses does not contain cell-like feature like cell membrane, cytoplasm, nucleus. So viruses are exceptions, and outside the living system viruses are non-living, and so viruses are link between living and non-living. It is not, viruses are not a living organism. These are linked between living and non-living. So all the living organism must contain a cell. So cell is the structural and functional unit of all living organism, whether it is unicellular or multicellular, and it is defining feature. It is defining feature of organism as it is present in living system without any exceptions. Okay, तो ये था हमारा फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स जो हम लोगों ने सुना, मेटाबॉलिज्म सुना, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, कंसिस्टेंस, और ये अभी हम लोग सुन रहे थे सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. इन सब में सारे कैरेक्टरिस्टिक फीचर में से कुछ को आपने डिफाइनिंग फीचर रखा जो कि बिना एक्सेप्शन के कहीं भी दूसरी जगह ऑब्जर्व नहीं होता, उनको हम डिफाइनिंग फीचर कहते हैं. और जो इसके अलावा ऑब्जर्व हो सकता है या लिविंग सिस्टम उसके बिना सर्वाइव कर सकता है, उसको हम डिफाइनिंग फीचर नहीं कह सकते. लेकिन ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं. डिफाइनिंग फीचर के अंदर मेटाबॉलिज्म आता है, डिफाइनिंग फीचर के अंदर हमारा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आता है, कॉन्शियसनेस आता है. ये तीन फीचर हमारा डिफाइनिंग फीचर है, और ग्रोथ और रिप्रोडक्शन को डिफाइनिंग फीचर के अंदर इंक्लूड नहीं किया जाता.